Good morning students. Today we are going to start a new chapter and this chapter is geography class 7 geography chapter. The chapter name is our chapter number 4 air. So let's begin. First, we will start the structure of atmosphere. Atmosphere means the layer of air, which is very important for us. For example, oxygen, carbon dioxide, all these gases are present in atmosphere only, or the layer of the air. So atmosphere is further divided into 5 layers. Okay, so these 5 layers are known as troposphere first layer, stratosphere is second, mesosphere is third, thermosphere 4, and the last layer is our exosphere. So this is the diagram which is given in your textbook also. These are the 5 layers and different kind of functions are going on. For example, it is Mount Everest, then it is aeroplane, then this is asteroids and meteoroids. You will see in our explanation, and this is the height which is given, means according to height all these layers you can see. Then the first layer is troposphere. So in this layer, the troposphere, it is the most important layer because it is the first layer of our atmosphere. The average height is 13 kilometer and the air that we breathe, for example, the air that we breathe is oxygen. Obviously, oxygen, that the air which we breathe is oxygen. O2, okay, O2, the O2 is the oxygen. So the oxygen the oxygen gas is present in troposphere only. So this layer all weather phenomena, जितने भी हमारी weather phenomena होती है, for example rainfall, fog, hailstorm, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी phenomena है, ये कहाँ पर अकर होती है हमारे troposphere में. So जो troposphere है, it is most important layer of the atmosphere. Second, इसकी height, the average height is 13 kilometer. The air that we breathe means oxygen, it is also exists in troposphere only. Then the layer means all the weather phenomena, for example rainfall, fog and hailstorm, all these activities occur in troposphere only. Then talking about the stratosphere, the second important layer. So this layer is it lies above the stratosphere. It lies above the stratosphere and its height is above like 50 kilometer. The first one is 13 kilometer and this stratosphere is 50 kilometer. दिस लेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स. इस लेयर में कोई क्लाउड्स नहीं होती है. यहाँ पे जो वेदर होता है, अब जिसकी वजह से ये बहुत ही आइडल सिचुएशन क्रिएट करता है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. यहाँ पे जो क्लाउड्स है, इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होती है, जिसकी वजह से ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करता है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स. देन हम लोग बात करते हैं ओजोन लेयर की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओजोन लेयर भी यही स्ट्रेटोस्फेयर में ही होता है. ठीक है. Then next is mesosphere. ये हमारा थर्ड लेयर है हमारे एटमोस्फेयर का, मेसोस्फेयर. देन इट इज द थर्ड लेयर ऑफ आवर एटमोस्फेयर. इट लाइज अबव. अब बात करते हैं जैसे फर्स्ट वन मीन्स हम लोग बॉटम से बात करें तो जो फर्स्ट था वो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर था. देन आते हैं ट्रोपोस्फेयर. देन थर्ड वन इज आर मेसोस्फेयर. सो दिस इज आर थर्ड लेयर विच इज मेसोस्फेयर सॉरी. देन इट लाइज अबव स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू अ हाइट ऑफ 80 किलोमीटर. अब सबकी हाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसकी जो हाइट है दिस इज 80 किलोमीटर. जब हम बात करते हैं ये टूटता हुआ तारा, यहाँ पर फिगर में आपको दिख रहा होगा टूटता हुआ तारा. टूटता हुआ तारा कुछ नहीं होता है, दिस इज मेटेरॉइड्स. ये बर्निंग मेटेरॉइड्स है जो हम लोग देखते हैं एज टूटता हुआ तारा, राइट. तो सो ये मेटेरॉइड्स जब बर्न होती है, ये भी किस लेयर में हमें देखने को मिलता है, एंड द लेयर इज आर मेसोस्फेयर ओनली. देन आते हैं हम लोग थर्मोस्फेयर के ऊपर. इन दिस थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली. थर्मोस्फेयर में हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और ये जो लेयर है ये हमारा आइनोस्फेयर का एक पार्ट है. अब जब हम बात करते हैं ये रेडियो वेव्स की, तो ये भी हमारा जो एक्टिविटी है इट हैपेंस ओनली इन थर्मोस्फेयर. देन इट एक्सटेंड्स अप टू 80 टू 40 किलोमीटर्स. जैसे हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो थर्मोस्फेयर की जो हाइट है इट इज अबाउट 80 टू 400 किलोमीटर्स. जब हम बात करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन, ये हमारा एक रेडियो ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है. तो जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो भी इसी थर्मोस्फेयर लेयर में ही होता है. जितनी भी रेडियो वेव्स होती है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो ट्रांसमिशन में रेडियो वेव्स होती है तो इनमें ट्रांसमिशन होता है. तो ये जो ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसमिशन होने के बाद यहाँ से ट्रांसमिशन होने के बाद ये आती है हमारी अर्थ सरफेस में रिफ्लेक्ट होती है. तो ये जो एक्टिविटी है रेडियो ट्रांसमिशन की, ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है हमारे थर्मोस्फेयर में.
देन आते हैं हम लोग एग्जॉस्फेयर, एंड एग्जॉस्फेयर इज द लास्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर, लास्ट लेयर है हमारा, और ये हमारा अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर का, विच इज नोन एज आर एग्जॉस्फेयर. दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर. यहाँ पे जो एयर है वो बहुत थिन होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, और यहाँ पे जनरली जो गैसेस हमें मिलती है दैट इज हीलियम एंड हाइड्रोजन. हीलियम हाइड्रोजन जो है ये हमारी लाइट गैसेस में हम लोग इंक्लूड करते हैं. दीज आर लाइट गैसेस विच फ्लोट इनटू स्पेस फ्रॉम हियर. ये सारी जो जैसे से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिगर देकर रखा है, ये हमारा अर्थ है. अर्थ के यहाँ पर जब हम बात करें, ये वाला जो जोन है, यहाँ पर आता है हमारा एग्जॉस्फेयर. यहाँ पर सिर्फ लाइट गैसेस होती है, फॉर एग्जाम्पल हीलियम एंड हाइड्रोजन, जो यहाँ स्पेस में ये जो हमारी गैसेस है वो फ्लोट करती है. ओके, थैंक यू क्लास.